Thank you. And once again, a warm welcome to all of you. It is really gratifying and wonderful to have many of you be with us as a part of this extraordinary journey. Several of you have participated in the previous sessions, and some of you have joined us new here for this session. A warm welcome to each and every one of you. Today's session focuses on how to remain motivated, the role of willpower and perseverance. As we worked with youth across the country over the years, this is a topic of special relevance to many, many youth. How do you increase your willpower? How to become stronger? And how to face difficulties with perseverance? This is a subject, if learnt well and mastered well, can serve us throughout our life. To delve into the depth of this subject, we have with us this evening Manoj Sharma ji. Manoj Sharma ji is the chairman of Madhya Pradesh State Committee of Sri Aurobindo Society. We call him Manoj Bhai, and he has been a part of the national decision-making body of Sri Aurobindo Society called the National Core Group. By profession, Manoj ji works with the state government of Madhya Pradesh based out of Bhopal in a key position. Manoj Sharma ji is also an eminent writer, motivator, and a resource person in the line of Sri Aurobindo's philosophy. I have personally known him for close to a decade and have seen him work with youth across the country. And to the benefit of many of them who are still in touch with him. So to take us further, I will request Manoj Sharma ji to speak to us this evening. Thank you, Srinivas ji. Namaskar and good evening to all. Today we are going to discuss this very important topic in the series Remaining Motivated, Role of Willpower and Perseverance. We will take up one PPT first, and then afterward we can take up some questions if there will be any. So can we start PPT? Next. Next. Now, before going into the depths of the topic, I would like to take all of you to inside yourself. Just I want to know how much we can know ourselves. Here there is one iceberg in the sea. और उसमें आप देख रहे हैं कि एक उसका जो बहुत मेजर पोर्शन है वो समुद्र के अंदर है, जो दिखाई नहीं देता है। जिन लोगों ने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी आप में से, तो उनको याद होगा कि ये आइसबर्ग का जो नहीं दिखने वाला हिस्सा था, उसी ने उस जहाज की जो नियति है, डेस्टिनी है, उसको बदल दिया था। और यदि हमें अपने जहाज की, अपने जीवन के जहाज की डेस्टिनी को टाइटैनिक जैसा नहीं करना है, तो ये जरूरी है कि हम लोग समय रहते अपने वो जो इनविजिबल पार्ट है उसको जाने। So a significant part is hidden inside ourselves. What we are outside is actually depends more and more on our invisible part. If our inner is positive, harmonious and strong, then we can face every situation. कोई भी दिक्कत हो, हम उसको पार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम उन हिस्सों को, अपनी सत्ता की उन चीजों को जाने जो अभी तक हम नहीं जानते हैं। हार्डली वी नो 50% और 60% ऑफ अवर सेल्फ, क्योंकि वो उसके विषय में हम लोगों we are talking about the two portions of our personality, of our self. One is visible and another is invisible.
So most of the time we works and we focus on our visual part, our physical part, our habits, etc., etc. But we should give some time to our invisible part also, and we need to culture that part. Culture means self culture, and this self culture is very important. We have to cultivate ourselves so that we can cultivate our habits, our hobbies, our perception about the life will change if we will go deep inside us. Next. Now comes the motivation. मोटिवेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा प्रेरक तत्व है क्या, कोई प्रेरणा ऐसी है क्या कि जिसके कारण से हम आगे चले. सो बेसिकली इट इज अ मोरल बूस्टिंग एक्टिविटी जिसको हम मोटिवेशन बोलते हैं. और ये जो है इसके कारण से जीवन में बहुत उमंग और उत्साह आता है अगर हमें कोई मोटिवेट करने वाला हो. वो मोटिवेशन हमारा उत्साह हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है. श्री अरविंद ने 4 तरह के जो है वो साधन बताए हैं. एक स्थान पर भी कहते हैं उत्साह और काल और गुरु और शास्त्र. इस तरीके के 4 जो है वो साधन होते हैं. सो जो उत्साह है उसको एंथियसिज्म जो हम बोलते हैं, वो उत्साह व्यक्ति को मोटिवेट करता रहता है. ये परमानेंट एक सोर्स ऑफ एस्पिरेशन होता है. और आप देखेंगे द बेस्ट एग्जाम्पल इज श्रीमद् भगवत गीता. और इन गीता लॉर्ड कृष्णा मोटिवेट्स अर्जुना टू फाइट अगेंस्ट द पीपल ऑफ हिज फैमिली फॉर द सेक ऑफ धर्मा. और कितना सुंदर उन्होंने सब कुछ समझाया है. एक स्थान पर वो कहते हैं, अर्जुन सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम व्यापसी. सुख हो या दुख हो, जिंदगी हो या मौत हो, तुमको कैरी ऑन करना है, तुमको पाप और पुण्य के झमेले में नहीं करना है. और इस तरह अनेक अनेक उदाहरण देकर वे उसको मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं. एंड फाइनली अर्जुना टेक अप द गांडी वंस अगेन. और फिर सारी कहानी आप लोग उसको जानते हैं. सो एक चीज तो ये है. दूसरा, जो यदि हम लोग और थोड़ा सा श्रुति में जाते हैं तो कठोपनिषद में एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त ब्राह्मण्य बोधत, जिसको स्वामी विवेकानंद ने बहुत कैटेगोरिकली पूरे संसार में भारत के दर्शन के साथ फैलाया है कि तुम उठो जागो. तो ये जो उठना है ये मोटिवेशन है. ये जो उठना है, ये जो जागृति है उस लक्ष्य के लिए जो हमने निर्धारित किया है, ये बहुत हेल्पफुल होता है. और सेम एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपका जो मोटिवेशन है उसके बारे में आप हमेशा कॉन्शियस होना चाहिए. खुद के बारे में, अपने मोटिवेशन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में. यदि आप अपने लक्ष्य के बारे में बराबर मोटिवेट होते रहेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट की चीजें नहीं दिखाई देंगी. आपके डेविएट होने के खतरे बहुत कम हो जाते हैं. और यहाँ पे जैसा मैंने अभी चर्चा किया कि उत्साह की बहुत भूमिका होती है. एक उत्साही व्यक्ति जो रहता है वो बहुत सारे कठिनाइयों को पार पा जाता है. और एक जो निरुत्साहित व्यक्ति होता है वो जीवन में बहुत कुछ करते हुए भी उसको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. नेक्स्ट. Now here comes the role of discipline. डिसिप्लिन का ऐसा रोल है कि जैसा भी मैं बात कर रहा था, कभी आप अगर उत्साहहीनता महसूस करते हैं, कभी आपको मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय मोटिवेट नहीं रह सकता है. जीवन में कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं. बट दिस हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, दिस डिसिप्लिन्ड लाइफ इटसेल्फ गिव्स सो मच मोटिवेशन कि उस बीच में ये जो खराब पैचेज आते हैं हमारे नेचर के, हमारे जीवन के, परिवार के, कैरियर के, वो निकल जाते हैं क्योंकि डिसिप्लिन के माध्यम से ये हम चल सकते हैं. सो आप देख रहे हैं स्लाइड में, उसमें कहते हैं कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट. तो ये पूर्णता की ओर ले जाना, वो अनुशासनहीन जीवन जो है वो हमें कहीं नहीं ले जाता है. जैसे हमें लक्ष्य की ओर मालूम रहता है कहाँ जाना है, और उस अगर हम उस ट्रैक पे नहीं चलेंगे, समझ लीजिए हमको जाना है यहाँ से पौंडीचेरी या अगरतला जाना है,
but if we will not follow the proper route, we will not reach there. So target is okay, but we have to keep the path always in our mind, and for that discipline is very important things. Next. Now we will talk about the regularity in our life. Always try to be regular. और ये जो रेगुलरिटी है ये हमको बहुत आगे ले जाती है, क्योंकि जिसका जीवन नियमित होता है ये डिसिप्लिन का ही एक और जब हम बहुत मैच्योर तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने लगते हैं तो एक रेगुलरिटी हमारे सारी न केवल आउटर लाइफ में बल्कि हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे परसेप्शन में, सब में धीरे धीरे आती है। और यहाँ श्री अरविंद ने बहुत सुंदर बात कही, टू बी एबल टू बी रेगुलर इज ए ग्रेट फोर्स, वन बिकम्स मास्टर ऑफ वंस टाइम एंड वंस मूवमेंट। आप जो करते हैं, आपका जो समय है और आपकी जो गतिविधियां हैं उसके आप सने सने मास्टर होते जाते हैं, जस्ट यदि आप सब चीजें रेगुलरली करते हैं। और फिर इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्व है। देखिए द 24 आवर होते हैं हमारे लिए भी और जो लोगों को हम आइडियल मानते हैं, he or she may be prime minister, president or any athlete or any film star or any poet or any military general, but one thing is sure, he or she also have 24 hours in a day. Now just because of his or her time management, he could do with the help of the other factors which we are going to discuss here in this session, but the time frame is there. So time, those who can manage the time, they can manage their life. हम लोग बोलते हैं श्री अरविंद का या महात्मा गांधी का जन्म इतने सन में हुआ और तब उन्होंने शरीर छोड़ा। सारा जीवन ही एक फिक्स टाइम है, इतने साल। एंड जो ईयर होता है दे आर मेड अप ऑफ मंथ, मंथ बनते हैं वीक्स से, वीक्स बनते हैं डेज से, फॉलोड बाय मिनट एंड सेकंड। सो जितना टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। Yeah, Manoj, the 1 minute, we just stop the screen share for about a minute. Okay. Yes, you can continue. So, if you are regular in your activity, if you are regular in your habit, and if you learn how to manage your time, then it will very helpful to achieve your target. Next. Now comes the perseverance. परसिवरेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि डटे रहने की जो आदत है, कि हम कुछ भी होगा हमने जो लक्ष्य तय किया है उसमें हम डटे रहेंगे। और इसमें आप देखते हैं माता जी बोलती हैं परसिवरेंस इज द डिसीजन टू गो टू द वेरी एंड। कोई भी परिस्थिति हो लेकिन हम उसका आखिरी तक उसको फॉलो करेंगे। कितनी भी कठिनाइयां आएंगी, वो फिजिकल की हो सकती हैं, मेंटल की हो सकती हैं, वो और दूसरी हो सकती हैं। और आप देख रहे हैं स्लाइड में कि जो सबसे नीचे के स्टेप्स पे बैठा हुआ है और वो सोचता है कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर वो लगा रहता है तो आगे बढ़ता है। आगे उसके मन में आता है आई कैन नॉट डू इट, फिर उसके मन में आता है डू इट, और धीरे 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 करके वो ऊपर पहुंचता है और जहां उसको सफलता मिलती है और फिर वो बोलता है यस आई डिड इट। सो ये जो लगे रहना है, ये जो डटे रहना है, इसको परसिवरेंस कहा जाता है। और ये जो है हमारी सक्रियता में, मदर बोलती है परसिवरेंस इज एन एक्टिव पेशेंस, ए पेशेंस दैट मार्चेज ऑन, वो आगे ही बढ़ता जाता है। और इसलिए हमें उस सारे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परसिवरेंस को फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट। Now there are 4 important steps while we are pursuing perseverance. The first is resolution, जिसको हम जानते हैं कि हम यदि कोई चीज का तय करते हैं, रेजोल्यूट करते हैं। The second is will power,
इच्छा शक्ति, द थर्ड इज एंड्योरेंस, सहनशीलता, कि हम उस कितना चीजों को ले जा सकते हैं आगे तक, एंड फोर्थ इज पेशेंस, जिसको हम लोग सब्र बोलते हैं, सबर बोलते हैं। तो इन चारों के ऊपर हम लोग अब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। नाउ हियर कम्स द फर्स्ट स्टेप and it is about the resolution. The resolution should be very positive. The first thing is, while we are making resolution, हमको एक complete thought process से होके गुजरना चाहिए। ये बहुत हैफेजर्डली नहीं करना चाहिए, नहीं तो जितने हम जल्दबाजी में रेजोल्यूशन लेते हैं उतनी ही जल्दी वो तिरोहित हो जाते हैं, उनका फिर पता नहीं चलता वो कहाँ गए। सो while we are in a process of resolution taking, तो फर्स्ट चीज है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर टू इज इट शुड बी प्रोग्रेसिव। कभी भी आप यदि नेगेटिव या अनप्रोग्रेसिव रेजोल्यूशन लेंगे, सारी कायनात आपको असफल करने में लग जाएगी, क्योंकि इस सारी जो सृष्टि है, जो क्रिएशन है, वो एक आगे बढ़ रही है पॉजिटिव तरीके से, और वो प्रोग्रेसिव है। सो आप नदी की जो धारा है उसके विरोध में नहीं जा सकते, आपको हमेशा पॉजिटिव ही चलना है। और यदि आप पॉजिटिव रेजोल्यूशंस लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सारी चीजें आपके सामने खुलती जाती हैं जिनकी आपको जरूरत है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, योर रेजोल्यूशंस शुड बी अलाइन्ड विद योर एम ऑफ लाइफ। आपने अपने जीवन का जो भी लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही आपको रेजोल्यूशन लेना है। कि यदि आपने उसमें जो भी सोचा है कि मैं ये बनूंगा या ये बनूंगी या ये मैं अर्जित करना चाहता हूं, तो फिर आपके रेजोल्यूशन भी उसी तरह से होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, मैं रेजोल्यूशन ले लेता हूं लेकिन कुछ समय बाद मेरे जो क्षमता है, मेरा जो रेजोल्यूशन है, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसा सबके साथ होता है। मैं एटलीस्ट अपना उदाहरण बता सकता हूँ। एक ही रेजोल्यूशन को हमने कई बार लिया है, उसमें निराश होने की बात नहीं रहती। तो एक मैंने ऐसे पढ़ा था, और उसमें ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था ऑन गुड रेजोल्यूशंस प्लीज, कि आप जितने भी रेजोल्यूशंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रेजोल्यूशन लिया कि मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, और आपने उसको 20 बार लिया, आपके बर्थडे पे लिया, 1 जनवरी पे लिया, या आपने रेजोल्यूशन लिया कि मैं आज से मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, एक्सरसाइजेज करूंगा, कुछ दिन बाद होता है। नीड नॉट टू डिस्करेज योर सेल्फ। अगर आपने 10 बार वो रेजोल्यूशन लिया है और 10वां बार आपने एक महीने किया है, तो एटलीस्ट 10 महीने ऐसे हैं जब आपने उसको करके दिखाया है, और ये जो है ये आप पे स्टॉक हो जाता है। फाइनली एक दिन आता है जब आप उसको कर जाते हैं। सो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं गिर गया हूं, नहीं कर पा रहा हूं। द वेरी फर्स्ट इज, जो इसमें लिखा है स्लाइड में आप देखेंगे, द पाथ टू विक्ट्री इज लॉन्ग। आपको ये लगता है कि ये गिव अप कर सकते हैं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, रास्ता लंबा है। आप में से जिसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पोएम सुनी होगी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कितना भी लंबा रास्ता हो, हमारे हौसले से लंबा नहीं हो सकता। तो हारता वही है जो हौसला छोड़ देता है, तो हमको उसको पकड़ के रखना है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड वन इज, you do a few things wrong on the way and you end up in despair. गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन गलती अगर हम करेंगे तो हम उससे सीखेंगे, लेकिन गलती करने के बाद अगर हम वो काम ही छोड़ देंगे तो फिर सही करने की गुंजाइश कहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। सो ये सेकंड थिंग है जिसके बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए। नाउ द थर्ड थिंग इज, आफ्टर ए फर्स्ट फ्यू सक्सेसफुल स्टेप्स अ फेलियर हैपेंस। तो फेलियर आता है, असफलताएं आती हैं। जो असफलताएं आती है वही व्यक्ति को सफल बनाती हैं। यू मे हैव आल्सो हर्ड अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट, द फेमस फ्रेंच पर्सन, जिन्होंने वहाँ एक फौजी के रूप में काम शुरू किया था और बाद में वहाँ के वो शासक बने, वहाँ के राजा बने, और वो एक बार असफल हो गए तो लोगों ने उनसे पूछा था, एंड व्हाट वंडरफुल आंसर नेपोलियन हैज गिवन टू द people who were asking and questioning his success or failure.
he said, I have not failed, my success is postponed. वो आगे बढ़ गई है, and one day will come when I will once again. So ये हमको एटीट्यूड लेके चलना चाहिए। और अगर हमारे जीवन में कोई निराशा आता है, कोई डिफिकल्टी आती है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। जो काम करते हैं उनके जीवन में ही निराशा आती है। नीरज जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कितनी सुंदर बात लिखी है, कविता लिखी, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। फिर वे कहते हैं, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो जब भी आप एक कोई नई चीज लेके चलते हैं, ऑलवेज इट हैपन्स, और वो एक हमारे लिए प्रतीक होता है। क्योंकि मदर ने एक जगह बोला है, पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं तो हम बीच में अगर रुक के देखें तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक होता है जो हमें ऊपर ले जाता है, एक हो जाता है जो नीचे ले जाता है। यदि आपको चढ़ने में दिक्कत हो रही है, यदि आपको परेशानी हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ढाल का रास्ता जो है हमेशा बहुत सरल होता है। तो जीवन में यदि हमें कुछ करना है तो हमें जो है ढाल का रास्ता नहीं चुनना है, परेशानियां आएंगी जाएंगी। And the last point is, after the first few steps you feel that the next one is too difficult for you। और ये होता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब आप सुबह उठना शुरू करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, 7 दिन 8 दिन आपके शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। जब भी आप किसी नए एनवायरनमेंट में, नए ऑफिस में जाते हैं, वहां जाके आपको लगता है कि नहीं, ये सब कुछ मेरे से नहीं हो रहा है, आने वाला जो वीक है वो और कठिन होने वाला है। लेकिन आपको उसको एक चुनौती के रूप में लेना है, जीवन में पीछे देखना है, उन लक्ष्यों को देखना है जो आपने डिसाइड किए हैं, अपने गुरु को याद करना है, अपने मोटिवेटर को याद करना है, और फिर बस लगे रहना है। दैट इज द ओनली वे। नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेप इज विल पावर। ये इच्छा शक्ति जिसको हम बोलते हैं, और ये जो इच्छा शक्ति होती है, वही आपने बहुत सारे ऐसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को देखा होगा जो दिव्यांग होते हैं, और कई एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा कि जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया, जिनको दूसरे लोगों ने बोल दिया कि नहीं आप शायद ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको करके बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर विल पावर। सो एक स्टडी विल हमारे भीतर होना चाहिए, और वो सारी चीजें हमारे सामने खोल के रख देती हैं, और इसको डेवलप किया जा सकता है। जैसे हम लोग अपनी शारीरिक क्षमता को, किसी को यदि डॉक्टर बोलते हैं कि आपके पैर में दिक्कत है एंड आप ये सर्टेन टाइप की एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपका जो एंकल है, या आपका जो नी है, या आपकी जो हिप जॉइंट है, वो फिर प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। आप फिजियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट करते हैं, आप सर्टेन एक्सरसाइजेज करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं कि आपका फिर वो हिस्सा मजबूत हो गया है। विल पावर के साथ भी ऐसे ही होता है। छोटी छोटी अभ्यास आप अपने विल पावर को डेवलप करने की करते जाइए, और ये ऐसे होना चाहिए जिसमें आप सिंसियर होकर प्रयास करें। क्योंकि हम लोग, होता यह है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम अपनी विल पावर को मजबूत करने के जो अभ्यास है, हम उसको भूलना शुरू कर देते हैं। हमें मालूम ही नहीं रहता कि हम ये कर सकते हैं। हनुमान जी को आपको याद हो, जब लंका में जाना था पता लगाने के लिए सीता जी का, उनको ये मालूम चल गया था कि लंका में है, बट कहाँ है, बात श्योर है या नहीं है। और तब फिर बोला गया हनुमान जी को, जामवंत ने और सारे लोगों ने उनको याद दिलाया उनकी खोई हुई शक्ति को, और वहां पर कितना सुंदर वर्णन है हनुमान जी के बारे में, बताया गया है कि आप में ये हिडन पावर्स हैं जो किसी एक अभिशाप के कारण, एक कर्ज के कारण वो भूल गए थे। दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। बट इस तरह की सारी शक्तियां जो है वो हमारे अंदर भी निहित है। हमारे भीतर भी हनुमान है, हमारे अंदर भी वो शिव और उनका शिवत्व तो है जिसको हमें जागृत करना चाहिए। सो वो सारी विल पावर के पीछे हमें लगातार लग के काम करना चाहिए, और यदि हम करेंगे तो फिर वो हम चीजें कर सकते हैं। एक्वायर व्हाट वी डू नॉट हैव इन आवर नेचर, दैट इज न्यू कैपेसिटीज। वो जो क्षमताएं हैं जो हमारी छिपी हुई है, उनको हम जागृत
नाउ द सेकंड वन इज नो व्हाट यू डू नॉट येट नो। ये जो विद्यार्थी भाव है ये सब में हमेशा हमारे जीवन में रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जो बोलते हैं और बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि भारत का जो भविष्य है वो है जगत का गुरु बनना। इंडिया विल बी द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स का गुरु होना है तो हमें सबसे पहले तो बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद का ऐसा मानना है कि यदि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा गुरु नहीं देखा जो अपने आप में बहुत अच्छा शिष्य नहीं रहा हो। सो यदि आपको गुरु बनना है तो आपको बहुत अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, और अच्छे शिष्य बनने के लिए आपको हमेशा जस्ट कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप ऑन लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिस तरफ यूनिवर्स हमको ले जा रहा है उस तरफ की नई चीजों को हमको सीखते रहना चाहिए, न केवल अपने भीतर की बल्कि संसार की होने वाली जो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव चीजें हैं। नेक्स्ट प्लीज। यस, दिस इज एंड्योरेंस। सो एंड्योरेंस इज द कैपेसिटी टू गो थ्रू ऑल विदाउट फटीग और डिप्रेशन। जो सहनशीलता है उसमें हमको हमेशा, अगर हम एंड्योर करते रहेंगे तो फिर हमको धीरे धीरे, अगर हम बीच में कुछ असफल होते भी हैं तो भी हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इफ वन हैज एंड्योरेंस वन सेज आई शैल बिगिन अगेन एज ऑफन एज नेसेसरी, 1,000 times, 10,000 times, 100,000 times if necessary. I shall begin again, but I shall go to the end, and nothing will have the power to stop me on the way. This should be our attitude, and this is endurance. बहुत पहले किसी ने मदर से एक बार पूछा था, और कि मदर, कभी हम असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो कैसा समय होता है? और माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब तुम निराशा में डूब जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं जब भी ये करता हूँ मैं नहीं कर पाता हूँ, असफल हो जाता हूँ, और फिर तब समय तुम्हारा शत्रु हो जाता है। और फिर मदर बोलती है, लेकिन जब तुम एक बार असफल होने के बाद सोचते हो कि कोई बात नहीं, यदि मैं आज असफल हुआ तो कल मैं फिर कोशिश करूंगा, और फिर अगर फिर असफल हो गया तो फिर दोबारा कोशिश करते हो, और एंड यू कीप ऑन ट्राइंग। और इस तरीके से जब आप करते जाते हो तो समय आपका मित्र बन जाता है। वो सारी चीजें जो बाधा देने में लगी थी, वो सारी चीजें आपको सहायता देने लगती है। सो वी शुड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग। और ये जो एंड्योरेंस है, जो असफलता है, ये सारे बादलों को छांट देती है। आप लोगों में से जिसने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं, उनकी एक बहुत फेमस कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो ट्राई करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा हार जाते हैं। और उसमें वो बोलते हैं, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, समथिंग लाइक दैट। बट द मैसेज इज, if you keep on trying, then you will, one day will come when you will get success. Next. Now the fourth step, this is patience, जिसको सब्र बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि हमको जो है बहुत पेशेंसफुल होना चाहिए। पंजाबी में बोलते हैं सब्र का दामन छोड़ी ना। और इसमें यदि जो धैर्य, जिसको हम बोलते हैं धीरज बोलते हैं, संयम बोलते हैं, यदि आप धैर्यवान होंगे तो आप निश्चित रूप से फिर अपने परसिवरेंस में आप सफल होंगे, आप उस गुण को अपने भीतर ले पाएंगे। और मदर ने बोला है, इट इज द कैपेसिटी टू वेट स्टेडीली फॉर द विक्ट्री टू कम। तो ये जो कमजोर होते हैं उनमें इस तरह के धैर्य की कमी होती है, पर आप धीरे धीरे जब स्वयं को मजबूत बनाते जाते हैं तो फिर वो हमारा एक गुण बच जाता है। बहुत अच्छी एक कहावत है हिंदी की, जो इसमें लिखी है, स्लाइड में आप लोग देखेंगे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आबे फल होए। इट मीन्स कि जस्ट हैव पेशेंस, द फ्रूट ऑफ योर एफर्ट will come on their own time, as the fruits come on the plant when the season comes.
Even if Mali continue, the gardener continue to water and nourish the plant throughout the year, but the fruit comes on the time. Mali सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए. And here also it reminds me about one very popular Hindi film song, and it was होले होले से दवा लगती है, तू सब्र तो कर मेरे यार. सो समथिंग लाइक दैट. जो सब्र करके रखता है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक टाइम आता है और जब हमारे सफलता के द्वार खुलने लगते हैं. और मदर ने तो ये कितना सुंदर इसके बारे में कोट किया है. एक संदर्भ में, एक रेफरेंस में उन्होंने बोला था, टू बी पेशेंट इज टू पुट टाइम ऑन योर साइड. और इसका हिंदी अनुवाद होगा, वो बहुत सुंदर है, प्रतीक्षा करने की कला को जानना, समय को अपने पक्ष में करना है. और ये जो प्रतीक्षा करना है, ये जो वेट करना है, ये पेशेंस है. तो हमको बहुत धीरज के साथ उस घड़ी की प्रतीक्षा करते रहने चाहिए. आप देखते हैं कि जो मोती है वो कैसे बनता है. एक नक्षत्र होता है, वो स्वाति नक्षत्र में वो जब जल आता है और वो चला जाता है समुद्र में अंदर, और वो शंख के अंदर जाके और एक मोती के रूप में बनता है. उस समय तक जो है वो जो जलचर है वो अपना मुंह पूरा खोल के रखती है कि वो बूंद आएगी और वो अमृत बूंद जो है वो मोती बन जाएगी. सो सेम हमको भी अपॉर्चुनिटीज के इंतजार करना चाहिए और तब हमें अपना मास्टर स्ट्रोक चलना चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. Now there we, as I discussed earlier, there are two things in our self. One is outer and another is inner. Similarly, we have two streams of our life also. The first is outer streams, और इसमें जो हम देखते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारी बाहरी चीजें हैं, वो सारी चीजें इसमें सहायता करती हैं. हमारा जो कैरियर है, इन सब का बहुत महत्व है. बट एट द सेम टाइम देयर इज वन इनर स्ट्रीम ऑल्सो. जो हैप्पीनेस है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो आपको कई बार बाहरी चीजों से नहीं मिलता है. कई बार एक बच्चे की मुस्कुराहट आपके लिए वो काम कर देती है जो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें खाने से या बहुत सारी उससे नहीं मिलती है. किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना आपको बहुत सुख दे देता है, अपने हार्मोनी को वापस ले आता है. सो आप अगर ये आपकी इनर और आउटर एक्टिविटीज जो है, इनर और आउटर जो आपकी स्ट्रीम्स है, यदि ये दोनों एक दूसरे से हार्मोनियस नहीं है तो आपके भीतर डिसहार्मनी होगी. When inner and outer streams align, जब वो दोनों चीजें चलती हैं, so there is always harmony and progress. You can see in this slide there are two pictures. एक में दो जेंटलमैन हैं जो दो अलग अलग डायरेक्शन में पेडलिंग कर रहे हैं साइकिल की. One is going left and another is going right. And do you think they will reach anywhere? नहीं पहुंच पाएंगे. सो इनमें से एक जो है वो हमारे इनर स्ट्रीम का प्रतिनिधित्व कर रहा है और दूसरा जो है वो आउटर स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है. और सिंस दे आर मूविंग अपार्ट, मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन, वो दोनों चलते रहेंगे लेकिन कहीं नहीं पहुंचेंगे, सारा दिन समाप्त हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम जब आप देखेंगे जो दूसरी जो हम इसमें फोटो लगाई हुई है, तो हम देखते हैं कि दोनों लोग जो है वो एक ही डायरेक्शन में पैडल कर रहे हैं और ये श्योर है कि वो दिन भर में बहुत ज्यादा सफर तय कर पाएंगे. सो ये जो दो लोग हैं ये हमारे इनर और आउटर स्ट्रीम्स के प्रतिनिधि हैं. इफ अवर इनर एंड आउटर स्ट्रीम्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, इफ दे आर अलाइंड, देन देयर विल बी द सक्सेस फॉर श्योर. और अगर ये अलाइन नहीं होंगे तो फिर हमको दिक्कत आती है. सो नेक्स्ट प्लीज. अब एक ये बात आती है कि बार बार हम पीछे क्यों हट जाते हैं. ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि गॉड जो है वो बहुत जस्ट है. उनका जस्टिस के ऊपर हम शंका नहीं कर सकते. उन्होंने सबको बराबर अवसर देते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी को हम कितना यूज कर पाते हैं. हम कुछ लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं. मदर बोला करती थी कि ऑलवेज कंप्लेंट नहीं होना चाहिए जीवन में,
हमको हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। जो सिचुएशंस हमको मिली हैं, दे आर द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स जिसका यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड हियर अगेन मुझे स्मरण आता है, एक बहुत पौराणिक कथा है और उसमें आप लोगों ने भी सब सुना होगा कि हाउ गणेशा, लॉर्ड गणेशा बिकम द फर्स्ट पर्सन की जिनकी पूजा होती है। आपने सुना होगा कि गणपति को सबसे पहले पूजा जाता है। और उस समय की ये कथा आती है कि एक बार सब लोगों में ये हुआ कि सबसे पहले पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर कौन आएगा, और गणेश जी और उनके भाई दोनों कंपटीशन में शामिल हुए। और आप जानते हैं कि गणेश जी के जो बड़े भाई हैं लॉर्ड कार्तिकेय, और लॉर्ड कार्तिकेयन ने उनका जो मोर है वो उनका चैरियट है, वो उसके ऊपर चलते हैं, उनका वाहन है, और उसके ऊपर वो निकल गए। और लॉर्ड गणेशा को आप देखते हैं कि उनका जो वाहन क्या है, वो उनका वाहन है रैट, चूहा। और दूसरा उनकी जो फिजिक आप देखेंगे वो भी अलाउ नहीं करती, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो उनके लिमिटेड उनके रिसोर्सेज थे, वो लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर उन्होंने रिलाई किया, उसको एक्सप्लोर किया, सोचा, और सोचने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मैं इस तरीके से तो टारगेट को पूरा नहीं कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मदर और फादर के, लॉर्ड शिवा के और गॉडेस पार्वती का, उन्होंने उनके 3 राउंड लगाए और 3 राउंड लगा के उनके चरणों में बैठ गए और श्रद्धा पूर्वक उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, आप ही धरती हो, आप ही माता हो, आप ही पिता, सब कुछ आप हो। और वहां पे उनकी बुद्धि की इतनी श्रेष्ठता हुई कि बाद में जो है उनको प्रथम पूज्य माना गया, कि लॉर्ड गणेशा को उनकी बुद्धि के कारण। एंड यू नो हु आर द वाइफ्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड गणेशा, रिद्धि एंड सिद्धि। So symbolically again our mythology says कि रिद्धि and सिद्धि comes to that person who do not complain about the situation or the abilities, who always remain grateful to the gurus, grateful to the parents, grateful to the nation. So this gratitude actually should be your attitude towards the life. ये लाइफ के प्रति आपके परसेप्शन को पूरा बदल देता है। नाउ दिस द एक्चुअल एनिमी हमारा है कौन, क्यों हम बार बार निराश हो जाते हैं, और इसकी जो जड़ता है, जो हमारे भीतर का प्रमाद है, जो हमारे भीतर का आलस्य है, वो जो हमारे भीतर की हिपोक्रेसी है, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा हमको नीचे लेके जाती है। श्री अरविंदो ने बहुत सुंदर कहा, व्हाई डू वी फॉल, आवर एक्चुअल एनिमी इज नॉट एनी फोर्स एक्सटीरियर टू आवर सेल्फ, बट आवर ओन क्राइंग वीकनेसेस, अवन कवर्डियस, जो हमारा डरपोकपन है, अवर सेल्फिशनेस, अवर हिप्रोक्रेसी, अवर परब्लाइंड सेंटिमेंटलिज्म। तो ये जो चीजें हैं, जो हम बार बार उसमें निराश हो जाते हैं। कुछ लोग जो अपने भीतर काम करते रहते हैं, जो प्रमाद में नहीं फंसते। प्रमाद भी उतना ही खतरनाक होता है जितना हमारा निराशा की तरफ ले जाने वाली असफलताएं होती हैं, क्योंकि जब आप सफल होते हैं, somebody told me, I was reading a book and उसमें आया कि एक्चुअली आप अपने बुरे समय के बीज तब बोते हैं जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है। सो अगर आपका अच्छा समय चल रहा है, if everything is going on well, then be cautious of your decisions, be cautious of your actions. Then in your good time you just sow the seeds of your failure. जब बुरा समय चलता है तब तो हर आदमी बहुत कॉन्शियस होता है, जितनी चीजें उसने सब चीजें सीखे हैं उसको अप्लाई करने की जगह उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। बट द रियल थ्रेट कम्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ गुड पैच ऑफ टाइम, गुड पैच ऑफ योर लाइफ। सो योर एक्चुअली एनिमी इज इनसाइड, द आउटर लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इनर थिंग. So you have to work hard regularly. Be conscious of yourself, as Lord Buddha says. Next. Then the importance of prayer, the power of prayer. Mother says, with patience and perseverance, all prayers get fulfilled. So जो लोग भी अपने अपने तरीके से, अपने शब्दों में, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी और की कही हुई प्रेयर करें, but prayer is the shortest way to reach to the divine, to the God, to the Guru. क्योंकि उसमें ना आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, ना मोबाइल की जरूरत पड़ती है,
और ना आपको सिम की जरूरत पड़ती है. जस्ट क्लोज योर आईज एंड कीप ऑन प्रेइंग एंड यू विल गेट सक्सेस. नेक्स्ट. Now, Mother went on explaining this thing about the perseverance, and what beautifully she said, what you are not able to do today, you will achieve tomorrow. Persevere and you shall conquer. आप यदि लगे रहेंगे, आप यदि डटे रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से जो है उसमें सफल होंगे. सो हमारे अपनी एस्पिरेशंस में, अपने प्रयास में, इसमें हमें कभी भी जो हमें सेटबैक्स मिलते हैं उससे हमको निराश नहीं होना चाहिए. आपको यदि ब्रेकअप ही लेना है तो अपनी निराशाओं से ब्रेकअप ले लीजिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको कुछ सफलता नहीं मिल रही है तो आप लगे रहिए. सो ये होता है, ये सबके साथ होता है. सो ये जो एस्पिरेशन है मीन्स अभीप्सा, अच्छी चीजों के प्रति, पॉजिटिव चीजों के प्रति, एंड सेकंड एफर्ट्स जो है वो हमारे निरंतर जारी रहना चाहिए. नेक्स्ट. नाउ दिस इज द फाइनल स्लाइड. क्योंकि जितना भी हम इस बारे में सोचते हैं, जस्ट वी हैव टू रिलाई ऑन द गुरु एंड ऑन द डिवाइन पावर. सो यदि आपका मोटिवेशन, आपने जो टारगेट लिए हैं वो पॉजिटिव है, जैसा मैंने बात की, अगर वो प्रोग्रेसिव है, यदि पॉजिटिव है, अगर वो सबके भले के लिए है, तो फिर आपको वो सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी. फिर हम लोगों ने परसिवियरेंस के बारे में देखा. फिर हमने ये देखा कि कैसे जो है वो लोग यदि निराश हो जाते हैं तो उनको कैसे अपने फिर से पेशेंस कायम रखना चाहिए. एंड फाइनली this golden mantra of Lord Sri Aurobindo, in which he says all can be done if God touch is there. वो यदि ऊपर वाले का स्पर्श होता है तो सारी चीजें की जा सकती हैं जो हमको आज नहीं समझ में आती हैं कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. बट द टच ऑफ द डिवाइन एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो मदर का जो सेंटेंस है, यू मस्ट कीप योर एस्पिरेशन स्टडी एंड बी पेशेंट in your endeavor and you are sure of success. And here is one beautiful poem, a beautiful prayer also. By that I will conclude this PPT. Supreme Lord, teach us to be silent so that in silence we may receive thy force and understand thy will. हम लोग को साइलेंस की प्रैक्टिस करना चाहिए. हर समय अगर आप बोलेंगे तो आप सुनेंगे कैसे? क्योंकि आप देखिए, जब आप चुप रहते हैं तो आप सुन सकते हैं कोई क्या बोल रहा है, लेकिन यदि आप बोलेंगे तो उस समय आप सुन नहीं सकते. तो कहा भी गया है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके जो सुनने की शक्ति है वो समुद्र की तरह अथाह और विशाल होती है, उनके पास बहुत अनंत ज्ञान आता है. सो साइलेंस की बहुत महिमा है. सो ये यहाँ हमारा पीपीटी हम क्लोज करते हैं और फिर हम लोग टेकअप कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चंस हो. Thank you. Next slide. Yes, this is the final slide. So we can take up the questions if we have. Sure, Manoj ji. So Manoj ji, पहला सवाल है अनिल सक्सेना जी का जी फेसबुक से, कि क्या अपनी अंदर की खुशी दूसरों के हाथों में दे देने से इंसान आत्मबल को कमजोर कर देता है? नहीं, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर अपने अंदर की खुशी हम दूसरों के हाथ में देते हैं, और सबसे पहले तो यदि हम ईश्वर या भगवान के हाथ में देते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है. जिन लोगों को भी आपने जीवन में सफल देखा होगा, वो वे लोग थे जिन्होंने अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी के लिए काम किया. वो गुरु नानक हो सकते हैं, गौतम बुद्ध हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं. दे हैव स्पेंट देयर लाइफ नॉट फॉर देयर सेल्फ, not for their family, but for the society, for the nation. उन्हीं को हमने श्रेष्ठ माना है जिन्होंने सबके लिए त्याग किया है. अपने लिए तो आप देखेंगे जो एनिमल होते हैं, जो दूसरे संसार में हम लोग देखते हैं कि वो खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए मर जाते हैं, उनका जीवन वही होता है. बट हम श्रेष्ठ उसको मानते हैं जो दूसरों के लिए जीता है. थैंक यू. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम पे ही, हाउ विल वी नो और गेट एन अश्योरेंस दैट इवन इन फेलियर वी आर मूविंग इन द राइट पाथ? फेलियर तो जो आएंगे वो राइट पाथ पर आएंगे। आपको एक तो कॉन्शियस होना चाहिए हमेशा अपने अंदर। जैसे मैंने बोला, यदि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो मिडिल में अगर आप पहुंचते हैं तो आपके पास दो रास्ते रहते हैं। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आप थकेंगे, आपके पैर जवाब देने लगेंगे, आपकी सांस जवाब देने लगेगी। और दूसरा रास्ता होता है कि जब आप मुड़ के नीचे की तरफ फिर चलना शुरू कर देते हैं, और वो रास्ता बहुत मधुर होता है, बहुत सरल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको शिखर पे नहीं ले जाता है। कैसे आपको ये मालूम चलेगा कि आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? वो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, कुछ एक्सटीरियर माइलस्टोन्स होते हैं जिसको आप अपने कैरियर में आप फॉलो करते हैं, कुछ इनर माइलस्टोन्स होते हैं। कई बार बहुत सारी असफलताएं भी हमें भीतर से बहुत सुख देती हैं। एक बच्चा जब गीला हो जाता है और उसकी माँ उसके गीले बिस्तर पर खुद सोती है, तो कई बार उसके दिमाग में ये आता होगा जब बच्चा बड़ा हो जाता है कि माँ ऐसा क्यों करती थी। बट वो जो प्लेजर, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है उस बच्चे को बड़ा करने का, वो आप तभी समझ सकते हैं जब आप किसी की माँ बनती हैं या किसी के पापा बनते हैं। नेक्स्ट। एक कौशल सिंह का क्वेश्चन है फेसबुक से। वो पूछते हैं, इज पीस एंड काम द सेम थिंग? कंटिन्यूअसली पीस आपके भीतर घर करती है तो आपका व्यक्तित्व जो है वो काम से भर जाता है। वो एक जो निश्चल नीरवता है जिसको हम बोलते हैं, काम बोलते हैं, तो वो जो उस वो अवस्था तब आती है जब शांति कुछ समय तक आपके भीतर ठहरना शुरू हो जाती है। सो पीस जो है वो एक अवतरण होता है, एक सिचुएशन होती है जिसमें आपको शांति महसूस होती है, जबकि कामनेस जो है वो एक उसकी और थोड़ा सा एक ठहराव लिए उसके आगे की एक अवस्था है। सो अगर कंटिन्यू हम पीसफुल रहेंगे तो आफ्टर सम टाइम हमारा जो इनर पोर्शन है वो पीसफुल होता है, काम उसमें आ जाएगा। थैंक यू। अगला जूम पे ही गजानन जी पूछते हैं, व्हाट आर द रियल सिग्नल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ सक्सेस? व्हाट आर द रियल सिग्नल ऑफ, व्हाट इज द रियल सिग्नल ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर सक्सेस? इसका रियल सिग्नल क्या है सक्सेस का? दोनों तरीके से, जैसा भी जो लास्ट क्वेश्चन में भी यही आया था। सक्सेस जो है वो बहुत रिलेटिव होती है। सो हम लोग तो ये बोलते हैं कि सक्सेस की जगह आप परफेक्शन को अपना जो है वो टारगेट बनाइए, क्योंकि जो परफेक्शन होता है उसमें आपकी खुद से खुद की लड़ाई होती है। जो सक्सेस होती है वो आपको किसी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बहुत मेरिटोरियस है, एक व्यक्ति जो है वो मेरिटोरियस नहीं है, वो जस्ट सो है पढ़ाई में। एक व्यक्ति जो है वो मेरिटोरियस है और उसके 60% मार्क्स आते हैं और रिजल्ट से उसको बहुत निराशा होती है। दूसरा व्यक्ति है जिसको ये लगता है कि शायद मैं एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फॉर्चुनेटली उसको जो है 60% मार्क्स मिलते हैं और वो पास हो जाता है। सो दोनों को 60% आए हैं। एक खुशी में मिठाइयाँ बांटता है, आइसक्रीम खिलाता है, और दूसरा निराशा में भर जाता है, जबकि 60%। आई मीन टू से द सक्सेस इज वेरी रिलेटिव थिंग, बट परफेक्शन इज हार्मोनियस, और वो हमेशा एक चलने वाली चीज होती है। सो सिग्नल हमको भीतर से भी मिलता है कि हमको कैसा लग रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ द सक्सेस और द रैंक और एनीथिंग। और एक्सटीरियर तो हमको मिलता ही है कि हम जब सफल होते हैं तो सब लोग बताते हैं कि आप सफलता के नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। नेक्स्ट। दूसरा श्रद्धा मोहंती जी पूछती हैं, हाउ शुड अ पर्सन नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बिफोर अप्लाइंग द विल पावर टू इट? Just you have to gather yourself inside and just go in the deepest possible part and just think whether this thing will help the humanity, my family, my nation, and in the last to myself to grow positive. कुछ ये मदद करेगा सबको आगे ले जाने में या नहीं? इफ आपका उत्तर आता है कि हाँ,
तो वो चीज करने लायक है। दूसरी चीज, जो काम करने से आपकी चेतना गिरती है वो काम नहीं करना चाहिए, वो अधर्म है। जो चीज करने से आपकी चेतना, आपको अच्छा लगता है, फील गुड होता है कि मैंने ये किया, वो चीज आपको जरूर करना चाहिए। सो दिस इज द थिंग। महात्मा गांधी बोला करते थे कि यदि जब आप कोई निर्णय लेते हो तो वो निर्णय में आपने अपने जीवन में सबसे दरिद्र, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा ऐसा व्यक्ति जो देखा है, वो आप देखिए आपका निर्णय क्या उसके जीवन में कुछ मुस्कान ला सकता है। यदि ला सकता है तो उसको करना है, और यदि उसके जीवन को वो और परेशान कर सकता है तो फिर आउटर लाइफ में भी, सार्वजनिक जीवन में भी वो निर्णय हमें नहीं करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हाँ ये चीज करने लायक है तो फिर पूरी विल पावर लगा के हमको उसको करना चाहिए। थैंक यू। ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, हाउ टू स्ट्रेंथन आवर विल पावर? मेनी यूथ हैव डिफिकल्टी इन कीपिंग स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये जैसे मैंने बोला कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमको छोटे छोटे अभ्यास करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करना चाहिए। जैसे हम ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अगर हमारा हाथ में कोई दिक्कत है तो हम हाथ की एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ हम जाते हैं तो उसमें भी हम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो जब हम फिजिकल लेवल पे अपनी दिक्कतें दूर करने के लिए करते हैं, वैसे ही हमें अपने विल पावर के मजबूत करने के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कल यदि मैं एक ले लेता हूँ रेजोल्यूशन, एक एक्सरसाइज ले लेता हूँ कि आज मैं दिन में एटलीस्ट 2 बजे तक मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, और आप देखेंगे आपको सारी समस्याएं उसी समय आएंगी, आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो चलाना अभी बहुत जरूरी है। किसी दिन आप ले लीजिए एक एक्सरसाइज ले लीजिए कि मुझे सुबह 10 बजे तक जो है वो बिल्कुल साइलेंस रहना है, बोलना नहीं है। एक हफ्ते में आप ये ले लीजिए कि मुझे राइस नहीं खाना है। एक हफ्ते में आप ले लीजिए कि कुछ भी हो मुझे 11 बजे सोना ही है। मैं वो आपको छोटी छोटी एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ जो यंगस्टर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकती है। आप ये ले लीजिए कि मेरे को ये जो बुक है, इस बुक को मुझे 7 दिन में खत्म करना ही है, और आप देखेंगे कि ये सारी चीजें फिर आपके अंदर एक विल पावर इकट्ठी होती जाती है, और वो विल पावर आपको भीतर भीतर मजबूत करती है। सो जस्ट कीप ऑन स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेस फॉर योर विल पावर। थैंक यू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जूम पे शानु जी श्रीवास्तव का। आई एम डूइंग माई वर्क and after that I fail, and my failure is little more than the success. How will I increase my willpower because it creates negativity and demotivation? नहीं, आप तो जानते हैं, जब आप स्वयं बोल रहे हैं कि जो फेलियर है वो नेगेटिविटी लाता है, पर आप ये भी तो सोचिए कि फेलियर ही तो होता है जो हमें अल्टीमेट सफलता की तरफ ले जाता है। यदि कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे कितने सारी असफलताएं रहती हैं, लेकिन अगर हम असफलताओं को पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी हमारा विल पावर है उसको मजबूत करने का समय ही तब होता है, क्योंकि जब आप कोई सी भी एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, पहले दिन में हम नहीं सफल होते हैं, बट धीरे 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 धीरे। डू यू थिंक कि जब आपके मदर फादर ने आपको सबसे पहले ब्रश करना सिखाया होगा तो आप पहले दिन से ही करने लगे? नहीं होता, दूसरे दिन भी नहीं होता, साल भर नहीं होता, बट वन टाइम कम्स जब आप कर सकते हैं। मैं कल के लिए आपको एक टास्क देता हूँ, अगर आप सब लोग राइट हैंड से ब्रश करते हैं, आप लेफ्ट हैंड से कल करके देखिए, आपको दिक्कत होगी, बट एट द सेम टाइम आपको कॉन्शियस होके वो करना पड़ेगा, और ये जो कॉन्शियस होके करना है ये आपके भीतर एक नई विल पावर डेवलप कर देगा। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आप दोनों हाथों से ब्रश करने लगे। वो सेम हैपेंस विद अदर थिंग्स आल्सो, सो नीड नॉट टू वरी। असफलताएं तो मिलती ही हैं, तभी तो सफलता का मोल हमें मालूम चलता है। थैंक यू। Sure. नेक्स्ट एक हर्ष करके हैं जो जूम पे हैं, वो अनम्यूट करके खुद ही सवाल पूछ लेंगे। नमस्कार मनु सर। हेलो हर्ष। थैंक यू इस सेशन के लिए। सर मेरा सवाल ये है कि जब अभी जैसे आपने बताया कि हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, पर कभी कभार जैसे ये होता है कि जब हम अपने काम में फेल होते हैं, हम लर्निंग की जगह हम लोग इस
भीड़ चाल में रहते हैं, इस दौड़ में रहते हैं कि हमें ये सही करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अचीव करना है, बट समटाइम हम वो लर्निंग मिस कर जाते हैं, वो कॉन्शियसनेस मिस कर जाते हैं। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये मेंटेन रहे ये चीजें, स्पेशली यू है, यूथ के लिए? हाँ, यू शुड स्पेयर सम टाइम इन योर सेल्फ। जो अभी हमने बात की थी शुरुआत की जो स्लाइड्स में देखा था कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में और अपने मोटिवेशन के बारे में लगातार कॉन्शियस रहना चाहिए। हम लोग सबकी सुनते हैं लेकिन हम खुद की नहीं सुनते। सो स्पेयर एटलीस्ट हाफ एन आवर इन योर डेली रूटीन व्हेन यू आर विद योर गुड सेल्फ। और उस समय आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो हाफ एन आवर में आप उस ईश्वर से, उस गुरु से डिस्कस कीजिए। और जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन है उसको आप बिल्कुल निकाल दीजिए, और जो भी पॉजिटिविटी है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक्सटर्नली बहुत सारे लोगों की भीड़ में चलने से ज्यादा अच्छा है कि हम थोड़ा भीतर जाएं, थोड़ा अपने अंदर जाएं। और जब हम अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे एक नया संसार है, क्योंकि सबके लिए सब चीजें नहीं बनी है। देयर इज वन यूनिकनेस जो सिर्फ आपके भीतर है। आपके जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना होगा। बिकॉज दैट यूनिकनेस इनसाइड योर सेल्फ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन। तो आप दूसरे के लिए, दूसरे के जैसे कैसे हो सकते हैं? इवन इफ आप दोनों लोग, अगर दो लोग दौड़ रहे हैं, आप हैं और आपकी सिस्टर हैं, तो आप उसके नंबर का शू पहन के नहीं दौड़ सकते, वो आपके नंबर का शू पहन के नहीं दौड़ सकती। वो सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, बट हमारी जो लगनशीलता, हमारे टारगेट जो है वो ये रहना चाहिए। थैंक यू हर्ष। जी सर, एक और इसी में मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला एम फोकस करना चाहिए, कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूं कि मेरे को नहीं पता कि मेरे को आगे कहाँ पहुंचना है या क्या रास्ता अपनाना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को इन्वॉल्व रखूं कामों में। तो क्या अगर हम एम नहीं पता कर पाते तो क्या ये ठीक है, या हमें दूसरों का जो बाहर से जो प्रेशर आता है वो हमें लेना चाहिए इस चीज पे? एम तो हमारा हर समय साफ सामने रहना चाहिए। जैसे हम बहुत सारी चीजें, जीवन में कोई भी परिस्थिति होती है पर हम नहीं बोलते कि हम कौन है, हमारा नाम क्या है, हमारी मम्मी कौन है, हमारे पापा कौन है, हमारा नेशन क्या है। सो वो जो जो जैसा मैंने शुरू में बोला कि जब आप एम ऑफ लाइफ आप अपना तय करते हैं, या आप जो मोटिवेशन या जो अपने गुरु तय करते हैं, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और जब भी आपको कठिनाइयां आए तो आप फिर उसी चीज के ऊपर फोकस करिए कि हमारा ये टारगेट है। प्रेजेंट सिचुएशंस क्या मेरे को उस तरफ ले जा रही है, नहीं ले जा रही है, तो मेरे को फिर अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और जब आप अपने भीतर अपना चिंता करने से कुछ नहीं होती। दो चीजें होती है, एक चिंता और एक चिंतन। हमको चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। क्योंकि अगर कोई चीज आप कर सकते हैं, अगर वो आपके हाथ में है तो आप करिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। और यदि आप उसमें नहीं कर सकते तो अननेसेसरी भी आप चिंता मत करिए, वो तो जो होना है होना है। एक बार जीवन में आपको सफल होने के अवसर एक के बाद एक मिलते हैं, लेकिन आपको ट्रैक पे रहना चाहिए। यदि आप ट्रैक से उतर जाएंगे तो फिर आपके लिए अवसर की संभावना समाप्त हो जाती है। थैंक यू। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था, कैन यू शेयर एनी प्रैक्टिसेस व्हिच वी कैन इंडल्ज इन टू इंक्रीज द विल पावर? हाँ, मैंने तो अभी बीच में कुछ चीजें आपको बताई कि विल पावर बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग फिजिकल लेवल पे अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए करते हैं कि मैं 5 किलोमीटर का वॉक करूंगा या मैं ये एक्सरसाइज करूंगा। उसी तरह जो है हम लोग अपने मेंटल लेवल के लिए भी ये कर सकते हैं कि नए नए छोटे छोटे से हम प्रयोग करके देखें अपने जीवन में कि आज के दिन हम जो है व्हाट्सएप का यूज नहीं करेंगे, आज के दिन जो है हम फेसबुक को थोड़ी देर के लिए अलग रखेंगे, आज के दिन जो है हम सोशल मीडिया से अलग रहेंगे, एटलीस्ट 3 घंटे हम आज दिन में चुप रहेंगे, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ ही हम आज का दिन बिताएंगे। और इस जब आप ये करने का प्रयास करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सारी चीजें जो है वो आपके रेजोल्यूशन को फेल करने में लग गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो एक भीतर की दीवार होती है, वो बहुत जोर से कोशिश करती है, लेकिन एक बार अगर आप लगे रहते हैं तो स्लोली स्लोली वो डिसअपियर हो जाती है। एंड वी शुड कीप ऑन टेकिंग दीज स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेज एवरी टाइम। व्यक्ति कभी उम्र के हिसाब से वृद्ध नहीं होता है,
वो वृद्ध तब होता है जब वो नए प्रयोग करना बंद कर देता है कि नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा। आप लोगों ने 80 साल के जवान भी देखे होंगे अपनी जिंदगी में, और 24 साल के बुढ़े भी देखे होंगे जो कुछ नहीं करते, उन्होंने कहा जितना अर्जित कर लिया वो बहुत है। अर्जित करने का अर्थ सिर्फ धन से नहीं होता है, नई नई चीजें सीखना ये अपने आप में कितना चैलेंजिंग है बदलते संसार में। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो व्हेन टू गिव अप ऑन एफर्ट because and when to keep on persisting, because sometimes we have to really stop the effort. So उस कंटेक्स्ट में का क्वेश्चन है कि कब हमें पता चले कि हम रुक जाएं और कब हम कंटिन्यू करते रहें किसी भी चीज को लेके। आप इतने कैलकुलेटिव नहीं हो सकते। आपको जो भी आपका है आपको पूरी ताकत के साथ झोंक देना है, और जब आप अपने पूरे एफर्ट लगा देते हैं तब उसका क्या रिजल्ट होगा, इस रिजल्ट से भी आप मुक्त हो जाते हैं। कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाते हैं, वो करना आपके हाथ में है, उसमें आप हाफ हार्टेड नहीं हो सकते कि मैं इतना लगाऊंगा इतना नहीं लगाऊंगा। छोटे से छोटा काम हो, छोटे से छोटी कोई आपको चीज जिम्मेदारी दी गई है, उसको आप अपने पूरी क्षमता के साथ करते जाइए। उसमें आप ये नहीं सोच सकते। आप एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आपके पास KG1 का कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है और उसके जाने के बाद फिर कोई 10th क्लास का बच्चा आपसे पढ़ने के लिए आता है, तो आप क्या करते हैं? वो जो KG1 के बच्चे हैं उसको क्या आप बिना मन के पढ़ाते हैं, आप कम एफर्ट डालते हैं? और जब 10th वाला आ गया तो आप ज्यादा एफर्ट डालते हैं? नहीं, एफर्ट लेवल आपका सेम रहता है। आप KG1 के स्टूडेंट को पढ़ाते समय पूरी क्षमता के साथ उसको बताने का प्रयास करते हैं जो उसके लेवल का है। एट द सेम टाइम 10th क्लास का स्टूडेंट जब आपसे पढ़ने आता है तो आप उस लेवल का उसको बताते हैं। सो क्या आप उसको सिखा रहे हैं ये अलग होता है, कैसे सिखा रहे हैं ये अलग हो सकता है, बट योर कमिटमेंट लेवल शुड बी 100%, उसमें कंप्रोमाइज कभी नहीं हो सकती। और मनोज लास्ट में मेरा खुद का क्वेश्चन था बाकी सबके क्वेश्चन। यस, व्हाई नॉट। तो मनोज जी एक जो पर्सनल डाउट रहता है कि लेट अस से वी सेट अ वेरी हाई गोल एंड हम ये भी सोचें कि भाई हम उसे फेल नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्टॉप ऑन टू दैट एफर्ट्स, बट कभी कभी ऐसा होता है वी टेक अ हाई गोल एंड देन जस्ट फॉरगेट। जैसे मैंने सोचा कि मैं कल से रोज 5 किलोमीटर दौड़ने जाऊंगा और कल याद ही नहीं रहता। तो हाउ टू बेसिकली not even keep persisting, how to set such high goals which are really actionable भी हों, जो कि मतलब ये क्वेश्चन था मेरा। जो एम ऑफ लाइफ है हमारी वो तो देखिए सबकी बहुत हाई होती है और होना ही चाहिए, लेकिन वो जो एम ऑफ लाइफ हमने अल्टीमेट जो गोल लिया है उसके साथ साथ हमको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हाथ में रखते हुए हमको स्टेप बाय स्टेप, जब आप लोग वनडे देखते हैं और उसके बाद जो कोहली या दूसरे लोग जो है वो बाद में जो अपनी बाइट देते हैं, तो उसमें आप लोगों ने कई बार एक शब्द सुना होगा, वी डिसाइडेड टू प्ले ओवर बाय ओवर, वॉल बाय वॉल। एंड टूर्नामेंट की जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि हम पूरा नहीं सोचते कि हमको इसमें जाके ये वर्ल्ड कप जीत के लाना है, हर समय अगर आप यही सोचेंगे तो नहीं चलेगा। सो मैच टू मैच हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आज यदि हमारा मैच बांग्लादेश से है तो हम बांग्लादेश की तरह सोचेंगे, कल इंग्लैंड की तरह है तो इंग्लैंड से सोचेंगे, और परसों यदि हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है तो हम ऑस्ट्रेलिया की तरह सोचेंगे कि उनके सामने हमें कैसे करना है। आप एक ही स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति आपकी डिफरेंट हो सकती है। गोल्स आपके एक अल्टीमेट गोल होता है और एक गोल होता है जिसमें आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स पाते जाते हैं। एक स्लाइड में हम लोगों ने देखा था वो 15-20 उसको स्टेप्स पकड़ के और ऊपर तक जाना होता है। ऐसा कैसे संभव है कि कोई पहले स्टेप से ही सीधे आखिरी स्टेप पे चला जाएगा? लेकिन आप पहले से जब दूसरे पे पहुंचे हैं तो एक व्यक्ति जो है वो सोचता है अभी तो एक ही स्टेप हुआ, 19 बचे हैं, और दूसरा जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो कहता है ओह एटलीस्ट आई हैव डन दिस मच, नाउ दिस रिमेनिंग पोर्शन इज दिस मच एंड आई कैन डू दिस, जैसा मैंने ये किया आगे मैं ये भी कर लूंगा। सो इट मेक्स डिफरेंस इन योर लाइफ।